एक्ट्स 21 चैप्टर 17 वर्स से 36 वर्स तक, जॉब 29 चैप्टर 30 चैप्टर 31 चैप्टर। हम एक्ट्स पढ़ेंगे 21 चैप्टर 17 वर्स से 36 वर्स तक। And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly. And the day following, Paul went in with us unto James, and all the elders were present. And when he had saluted them, he declared particularly what things God had wrought among the Gentiles by his ministry. And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe, and they are all zealous of the law. And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs. What is it therefore? The multitude must needs come together, for they will hear that thou art come. Do therefore this that we say to thee. We have 4 men which have a vow on them. Them take and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads, and all may know that those things whereof they were informed concerning thee are nothing, but that thou thyself also walkest orderly and keepest the law. As touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from things offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication. Then Paul took the men, and the next day, purifying himself with them, entered into the temple to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them. And when the 7 days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people, and laid hands on him, crying out, Men of Israel, help! This is the man that teacheth all men everywhere against the people and the law and this place, and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place. For they had seen before with him in the city Trophimus, an Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple. And all the city was moved, and the people ran together, and they took Paul and drew him out of the temple, and forthwith the doors were shut. And as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of the band that all Jerusalem was in an uproar, who immediately took soldiers and centurions and ran down unto them. And when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul. Then the chief captain came near and took him and commanded him to be bound with 2 chains, and demanded who he was and what he had done. And some cried one thing, some another among the multitude. And when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle. And when he came upon the stairs, so it was that he was borne of the soldiers for the violence of the people. For the multitude of the people followed after, crying away with him. प्रेरितों के काम 21 अध्याय 17 वचन से 36 वचन, और अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय 30 अध्याय 31 अध्याय। पहले हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे 21 अध्याय 17 वचन से 36 वचन तक।
पौलुस की याकूब से भेंट। 17 वचन से आगे, जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तो देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। मंदिर में पौलुस का पकड़ा जाना। 27 वचन से आगे, जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने उस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने उससे पहले इफिसुस वासी त्रुफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और दो जंजीरों में बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगे, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगे। एक्चुअली हमको 36 वचन तक ही पढ़ना था, हमने पूरा 40 वचन तक पढ़ ली। जोब 29 चैप्टर, 30 चैप्टर, 31 चैप्टर। हम 29 चैप्टर से पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से।
Job bemoans himself when he remembers his former prosperity and honor. Moreover, Job continued his parable and said, "Oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me, when his candle shined upon my head, and when by his light I walked through darkness, as I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle, when the Almighty was yet with me, when my children were about me, when I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of oil, when I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the street. The young men saw me and hid themselves, and the aged arose and stood up. The princes refrained talking and laid their hand on their mouth. The nobles held their peace, and their tongue cleaved to the roof of their mouth. When the ear heard me, then it blessed me, and when the eye saw me, it gave witness to me. Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him. The blessing of him that was ready to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy. I put on righteousness, and it clothed me. My judgment was as a robe and a diadem. I was eyes to the blind, and feet was I to the lame. I was a father to the poor, and the cause which I knew not I searched out. And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth. Then I said, I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand. My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch. My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand. Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my counsel. After my words they spake not again, and my speech dropped upon them. And they waited for me as for the rain, and they opened their mouth wide as for the latter rain. If I laughed on them, they believed it not, and the light of my countenance they cast not down. I chose out their way, and sat chief, and dwelt as a king in the army, as one that comforteth the mourners. Chapter 30. Job's honor turned into extreme contempt, his prosperity into calamity. First verse say, But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock. Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished? For want and famine they were solitary, fleeing into the wilderness in former time, desolate and waste, who cut up mallows by the bushes, and juniper roots by their for their meat. They were driven forth from among men. They cried after them as after a thief, to dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks, among the bushes. They brayed under the nettles, they were gathered together. They were children of fools, yea, children of base men. They were viler than the earth. And now am I their song, yea, I am their byword. They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face, because he hath loosed my cord and afflicted me. They have also let loose the bridle before me. Upon my right hand rise the youth, they push away my feet, and they rise up against me the ways of their destruction. They mar my path, they set forward my calamity, they have no helper. They came upon me as a wide breaking in of waters in the desolation, they rolled themselves upon me.
terrors are turned upon me, they pursue my soul as the wind, and my welfare passeth away as a cloud. And now my soul is poured out upon me, the days of affliction have taken hold upon me, my bones are pierced in me in the night season, and my sinews take no rest. By the great force of my disease is my garment changed. It bindeth me about as the collar of my coat. He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes. I cry unto thee, and thou dost not hear me. I stand up, and thou regardest me not. Thou art become cruel to me. With thy strong hand thou opposest thyself against me. Thou liftest me up to the wind, thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance. For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living. Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. Did not I weep for him that was in trouble? Was not my soul grieved for the poor? When I looked for good, then evil came unto me, and I waited for light, there came darkness. My bowels boiled and rested not. The days of affliction prevented me. I went mourning without the sun. I stood up and I cried in the congregation. I am a brother to dragons and a companion to owls. My skin is black upon me, and my bones are burnt with heat. My harp also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep. Chapter 31. Job's solemn protestation of his integrity. First verse say, I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? For what portion of God is there from above, and what inheritance of the Almighty from on high? Is not destruction to the wicked, and a strange punishment to the workers of iniquity? Doeth not he see my ways, and count all my steps? If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit, let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity. If my step had turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands, then let me sow, and let another eat. Yea, let my offspring be rooted out. If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbor's door, then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her. For this is an heinous crime. Yea, it is an iniquity to be punished by the judges, for it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase. If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant when they contended with me, what then shall I do when God riseth up, and when he visiteth, what shall I answer him? Did not he that made me in the womb make him? And did not one fashion us in the womb? If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail, or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof, for from my youth he was brought up with me as with a father, and I have guided her from my mother's womb. If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering, if his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep, if I have lifted up my hand against the fatherless, and when
fatherless, when I saw my help in the gate, then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone. For destruction from God was a terror to me, and reason of his highness I could not endure. If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence, if I rejoiced because my wealth was great, and because my hand had gotten much, if I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness, and my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand, these also were an iniquity to be punished by the judge. For I should have denied the God that is above, if I rejoiced at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him. Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul. If the men of my tabernacle said not, Oh, that we had of his flesh, we cannot be satisfied. The stranger did not lodge in the street, but I opened my doors to the traveler. If I covered my transgressions of as Adam by hiding mine iniquity in my bosom, did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence and went not out of the door? Oh, that one would hear me. Behold, my desire is that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book. Surely I would take it upon my shoulder and bind it as a crown to me. I would declare unto him the number of my steps. As a prince would I go near unto him. If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain, if I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life, let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय, 30 अध्याय, 31 अध्याय हम BSI बाइबल हिंदी में से पढ़ेंगे। अय्यूब का अंतिम कथन। 29 अध्याय पहले वचन से। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास के चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हकीम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंहपन किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पाँव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकद्दमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की डाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। तब मैं सोचता था, मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत
होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह के समान बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मोह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुँह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता वैसा ही मैं रहता था। 30 अध्याय पहले वचन से। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाओं की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावनी नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वंश है जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते, गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरे दाहिनी ओर बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी और जब मैं उजियाले की आशा लगाए था तब अंधकार छा गया। मेरी आंतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ।
मैं गिदड़ों का भाई और शतुरमुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड्डियाँ जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। 31 अध्याय पहले वचन से, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आँख लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आँखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य धर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती है। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा? जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों के ऊन के कपड़े न दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो। परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो, मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरी मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए
फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता। मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेघारियाँ मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जौ के बदले जंगली घास उगे। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 8 चैप्टर 19 वर्स से 25 वर्स, जोशुआ 8 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 19 वचन से 25 वचन और यहोशुआ की पुस्तक 8 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में अभ्यास के रूप में पढ़ेंगे। ऐसा करते हुए परमेश्वर हमारे हृदय में एक अलग प्रकार का विश्वास लेकर आएगा। अगर ऐसा कुछ परमेश्वर चेंजेस लाता है, हमको विश्वास जीवन हमारा मजबूत होने का कुछ न्यू बनाने वाले वचन हमको मिलते हैं, तो हमने निश्चित उसको वचन को लिख लेना है, प्रकाशन को लिख लेना है और फिर हमने उसके अनुसार अपने जीवन में भी चलना है। ऐसा करते हुए हम विश्वास में मजबूत होकर 2 साल के अंत में एक मजबूत विश्वास की नींव तैयार होकर हम निखर कर आएंगे और ऐसा होने से परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है उसके राज्य के कामों में। ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इसका अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।